الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ قابل احترام محترم برادرم محمد افضل صاحب، منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، انتہائی قابل احترام ذمہ داران جمعیت، کارکنان جمعیت اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں جمعیت طلبہ عربیہ کے نظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس حسین روایت کو قائم رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنے اس قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں پر ملک بھر سے قافلے جوق در جوق تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کائنات کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے کہ ہزاروں اور کروڑوں سال پہلے یہ وجود میں آئی تھی، اور آج اس کائنات کی جب تاریخ بیان کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کائنات کی یہ جو 8000 مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک انسان بھی تھا جو کائنات کی باقی مخلوقات کی طرح غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر بھی پرندوں کی طرح اور جانوروں کی طرح کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور انسان کچا گوشت کھاتا تھا۔ اس کو پکانے کا، گھر بنانے کا، رہن سہن کا اور باقاعدہ ایک سویلائزڈ تہذیب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے آپ اپنی پرانی کتابیں پڑھیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ناطق ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح ہے، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پرندہ گھونسلے میں رہتا تھا، آج ہزاروں سال بعد بھی گھونسلے میں رہتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے درندہ غار میں رہتا تھا اور اپنے لیے شکار کرتا تھا، آج ہزاروں سال بعد بھی درندہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو کائنات کی مخلوق جس طرح تھی وہ آج اسی طرح ہے، لیکن انسان اللہ رب العالمین کی اس کائنات کی سب سے افضل اور عرفہ اور اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے کہ جو اس کے فضل و کرم سے پہلے تو وہ ننگا رہتا تھا،
आज लिबास की नित नई वैरायटियां इजाद करता है। पहले वो सर्दी और गर्मी में अपनी हिफाजत का सामान नहीं कर सकता था, आज उसने सर्दी और गर्मी का इंतजाम भी किया है। आज से हजारों साल पहले इंसान भी दरिंदों की तरह और जंगलियों की तरह गार में रहता था। आज इंसान ने यह तरक्की की है कि न सिर्फ ये कि वो अपने लिए खूबसूरत घर बनाता है, बल्कि वो दरियाओं की और समंदरों की तहों में उतर गया है। वो फिजाओं में उड़ना जानता है। वो चांद के ऊपर और उससे आगे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, ये कायनात में जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकाम और मर्तबा दिया है, ये दरअसल इंसान को अकल देकर कायनात की तमाम मखलूकात पर उसने उसको मर्तबा दिया और हैवी कर दिया। आज आप देखें कि हाथी आपसे ताकत में बहुत बड़ा है, लेकिन इंसान उसको काबू करता है। शेर जुर्रत और बहादुरी में इंसान से बहुत आगे है, लेकिन इंसान अपनी अकल के जरिए से उसे काबू में ले आता है। इसी तरह कायनात की तमाम कुव्वतों को इंसान मुसख्खर करने की कोशिश कर रहा है। ये सब इंसान की अकल की वजह से है, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कायनात की तमाम मखलूकात के ऊपर आला और अरफा मकाम अता किया है। और मेरे अजीज भाइयों, आए जरा इंसान के स्ट्रक्चर पर, इंसान की बॉडी और उसके जिस्म पर गौर करें कि मेरे रब ने मुझे अपने हुक्म से बनाया है और वो हर चीज पर कादिर है। अगर वो चाहता तो वो मेरी अकल को मेरे कंधे में रख सकता था, मेरे पेट में रख सकता था, मेरे दिल में रख सकता था, लेकिन आप उसकी कुदरत देखें कि उसने अकल को न पैर में रखा, न पेट में रखा, न कंधे पर रखा, बल्कि सबसे ऊपर उठाकर उसने दिमाग में रखा। आप देखें कि ये जिस्म का सबसे आला और अरफा मकाम है। क्यों? इसलिए कि आप प्लानिंग करते हैं इसी दिमाग के साथ, आप सपने और ख्वाब देखते हैं ब्राइट फ्यूचर के, आगे निकलने के, आगे बढ़ने के, सितारों पर कमंद डालने के, और दुनिया में जुस्तजू और जिद्दोजहद करने के आप जितने मंसूबे बनाते हैं, सब इस अकल के जरिए बनाते हैं। ये एक इस्तिआरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी जबरदस्त जो चीज इंसान को अता की, उसको जिस्म में सबसे ऊपर उठाकर रखा। इसलिए आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेजुएट हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, तो उसको जो टोपी पहनाई जाती है वो कंधे पर नहीं, वो हाथों में नहीं, वो जिस्म के किसी और हिस्से पर नहीं, सर पर पहनाई जाती है। जब आप फाजिल हो जाते हैं, आप दीनी कोर्स को मुकम्मल करते हैं और आपकी तकमीले बुखारी का प्रोग्राम होता है, तो आपको दस्तार पहनाई जाए तो सर पर पहनाई जाती है। जब किसी गांव का चौधरी फौत हो जाए और उसकी जगह उसका बेटा, उसका जानशीन आ जाए, तो आप जानते हैं कि उसके सर पर जब दस्तार डाली जाए तो इसका मतलब यह होता है कि यह हमारा सरदार है, यह हम में इज्जतमंद है, यह हम में शर्फ वाला है, यह हम में सबसे मुअज्जिज है। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अकल को सबसे ऊपर उठाकर रखा कि इसी की वजह से इंसान को दुनिया की तमाम तरक्कियात हासिल होंगी। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मैं और आप जब नमाज में जाते हैं, कभी आपने इस बात पर गौर किया हो या ना किया हो? आइए आज गौर करते हैं कि जब हम नमाज में जाते हैं तो नमाज में जाने के बाद सजदे में सर झुकाते हैं। आपने कभी गौर किया कि ये सर जब सजदे में जाता है तो ये पांव के बराबर हो जाता है, और सजदे में जाने के बाद
जो तस्बीह हम वहां पर पढ़ते हैं सुभान रब्बी अलाला, इसका मतलब यह है कि सब चीजों से बुलंद मेरा रब है। मतलब यह है कि मैं अपने इस दिमाग से, मैं अपने इस जहन से, मैं अपनी इस अकल से जो मंसूबा बनाऊंगा तरक्की करने का, कारोबार करने का, आगे बढ़ने का, तालीम हासिल करने का, चांद पर कमंद डालने का, दुनिया में ओहदा और स्टेटस बनाने का, इस अकल के जरिए मैं जो भी काम करूंगा सुभान रब्बी अलाला, वो रब के आर्डर से ऊपर नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि मेरा रब मेरे कारोबार से बड़ा, मेरे ओहदे से बड़ा, मेरे स्टेटस से बड़ा, मेरी दुनिया की हर चीज से बड़ा है। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, मुझे उन्मान दिया गया कि दौरे जदीद में तलबा मदारिस के करने का काम, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने जहन से आप भी प्लानिंग करते होंगे, सपने देखते होंगे, ख्वाब तामीर करते होंगे कि मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं इस तरह आगे बढ़ूंगा। आप आज दुनिया में जाएंगे, रुपए की चमक, दौलत की कड़क, सिक्के की झनकार आपके सामने आएगी। आपके जहन को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी सलाहियतों को, आपकी नेकोकारी को मशहूर करेगी और आपको भी नजर आएगा कि सिक्के की झनकार है, नोट की कड़क है और दौलत की चमक है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, इस पूरे माहौल के अंदर आपकी प्लानिंग क्या है? सुभान रब्बी अला, कि मेरा रब मेरी हर चीज से बुलंद है। और मेरे अजीज भाइयों, क्या ही खूब बात वो जो अल्लाह ताला ने कुरान में एक हकीम का तज़किरा किया कि जो नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता, कि हमने लुकमान को हिकमत दी। वो हिकमत क्या थी? आप जानते हैं कि कद छोटा था, रंग काला था, इंसान गुलाम था, दुनिया में स्टेटस नहीं थी, दौलत नहीं थी, दुनिया का कोई ओहदा उसके पास नहीं था, लेकिन उसने अपनी अकल के जरिए से मकाम बनाया था कि बादशाह वक्त के दरबार में वो खास और अखस्सुल खास बन गया, इसलिए कि उसके पास अकल थी। रब ने उसको अकले सलीम से नवाजा था। और उसकी अकल क्या थी कि बादशाह ने, रईस शहर ने उसे कहा कि लुकमान, ये जाओ बकरी लेकर जाओ, इसको ज़बह करो और ज़बह करने के बाद इसके 2 बदतरीन आज़ा मेरे पास लेकर आओ। वो चला गया, उसने बकरी को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद वो उसकी जुबान, उसका दिल निकाल कर लेकर आया। बादशाह ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये 2 बदतरीन आज़ा है। फिर बादशाह ने कहा कि अब जाओ ये दूसरी बकरी लो, इसको ज़बह करो और इसके 2 जिस्म के बेहतरीन आज़ा निकाल कर लाओ। वो चला गया, बकरी को ज़बह किया और फिर दोबारा वही 2 आज़ा निकाल कर आया। बादशाह जानता था, उसने दरबारियों के सामने कहा कि ये क्या वजह कि मैंने पहले भेजा, तुम्हें बदतरीन आज़ा कहे तुम यही लेकर आए, फिर बेहतरीन कहे तुम यही लेकर आए, तो जरा वजह बयान करो। तो उसने कहा बादशाह सलामत, दिल के ये 2 ही आज़ा है, अगर ये ठीक हो जाए पूरा जिस्म ठीक होता है, पूरा मुआशरा ठीक होता है, पूरे मुआमलाते जिंदगी दुरुस्त हो जाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आप जमीयत तलबा अरबिया के कारकुनान हैं, आपने दुनिया को छोड़ा, आपने स्टेटस को छोड़ा, आपने दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर जिस रास्ते का इंतखाब किया वो अंबिया का रास्ता है, वो मुआशरे में इनकलाब का रास्ता है, वो मुआशरे में खैर का रास्ता है। मेरे अजीज भाइयों, जब आपने इस रास्ते का इंतखाब किया, मुझे पता है कि आप जब मीडिया पे बैठते होंगे, आप जब अपने रिश्तेदारों से मिलते होंगे, आप
جب اپنی سوسائٹی میں جدید تعلیم یافتہ طبقے میں جاتے ہوں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ مولوی بن گیا ہے، بیکاری بن جائے گا، بھوکا مر جائے گا، سٹیٹس نہیں ہوگا۔ دنیا آپ کو کہے گی کہ مولوی کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ ہاں شاید میں نے کوئی کھوٹا، شاید میں نے کوئی فضول، شاید میں نے کوئی بیکار فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں مدینہ کے بازار میں تجارت کرتا ہوں، دولت کماتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں نے ترقی کی ہے، میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے، وہ آپ کی محفل میں فضول بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے دولت کمائی، میں نے پیسے کمائے، میں نے سٹیٹس بنایا، میں کاروبار میں آگے بڑھا، لیکن میرا بھائی وہ کچھ نہیں کرتا، صرف آپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کے ذہن میں بھی کبھی کمتری آئے، کبھی مایوسی آئے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی کو یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بھائی کو لے جاؤ، اس کو تاجر بناؤ، اس کو سائنس ٹیکنالوجی سکھاؤ، اس کو دنیا کے فنون سکھاؤ، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترزق من اجلہ، ہو سکتا ہے تیرا کاروبار، تیری ترقی، تیرا عہدہ، تیرا سٹیٹس تیرے بھائی کے علم دین کی برکت کی وجہ سے تجھے مل گیا ہو کہ تو اس کی کفالت کرے، تیرا یہ بھائی دین میں تفقہ اور تربیت حاصل کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر دنیا میں کبھی آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئے تو آپ نے فوراً یہ نبی علیہ السلام کا فرمان اپنے سامنے رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، پوری کائنات کی ہر تھیوری، ہر پریکٹیکل غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ کبھی غلط نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیاوی فنون میں مہارت حاصل نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عصری دور جدید کے تقاضوں کو نہ سمجھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بصرہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت، باہر لوگوں کے درمیان ایک مذاکرہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال کمانا اور پھر رب کے راستے میں خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کے نزدیک کیا زیادہ بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ علم دین اللہ رب العالمین جس کو دیتا ہے یہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے، اور مالدار کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم دین اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، مال اپنے محبوب اور مبغوض دونوں کو دیتا ہے۔ جب انسان علم دین خرچ کرتا ہے یہ مزید بڑھتا ہے، جب مال خرچ کرتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ جب عالم دین دنیا میں زندہ ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور مالدار ہو تو اس سے حسد کرتے ہیں۔ علم دین، عالم دین دنیا میں زندہ ہو تو بھی ذکر ہوتا ہے، اور جب چلا جائے تو بھی ذکر ہوتا ہے، اور مالدار جب دنیا سے جائے لوگ بھول جاتے ہیں، اور عالم دین جب رب کے پاس روز قیامت آئے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا، اور جو مال والا آئے گا اس کو مال کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں،
आज के इस इज्तिमा से मैं और आप यही अपना जहन बनाकर जाएं कि आज की दुनिया के जदीद तकाजों को जरूर जब समझेंगे, उनको हासिल करेंगे, उनमें कमांड हासिल करेंगे, लेकिन मेरी और आपकी जो बुनियाद है वो इल्म दीन है और हमने इससे जुड़कर दुनिया को इसी की तरफ लेकर आना है। और मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप और मैं जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इसके लिए हमें मेहनत की, जुस्तजू की, जिद्दोजहद की जरूरत है। आप मुसलमान हैं या जो दुनिया में लोग मुसलमान नहीं, रब की सुन्नत यह है कि जो मेहनत करे वही आगे बढ़ता है और जो मेहनत ना करे वो मुसलमान भी हो तो दुनिया में पीछे रह जाता है। जिस तरह के आज उम्मत मुस्लिमा दौरे ज़वाल से गुजर रही है, इकबाल ने कहा था वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा, इसी में है इज्जत। खबरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना, बड़ाई बड़ों को इसी से मिली है। निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है, कोई समझे इसे तो अक्सीर है ये, बड़ा बन के रहने की तदबीर है ये। मेरे अजीज भाइयों, बल्कि मैं आपके सामने एहसान दानिश का जो उर्दू लिटरेचर की फील्ड में एक ताबिंदा और रोशन नाम है, उनका जिक्र भी करना चाहूंगा कि उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब की वजह से उनका नाम उनके दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा हो गया। वो किताब आप जरूर पढ़ें, जहान दानिश। उन्होंने अपनी आप बीती लिखी कि मैंने जिंदगी किस तरह गुजारी। उसमें उन्होंने एक वाकया बयान किया कि मैं लाहौर में तालीम हासिल करने के लिए आया, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन गुर्बत की वजह से मेरे लिए मुमकिन न रहा कि मैं तालीम को जारी रख सकूं और मैंने कोशिश की कि मैं तालीम न छोड़ूं, लेकिन मेहनत करूं, मजदूरी करूं और किसी तरीके से अपनी तालीम मुकम्मल करूं। उन्होंने लिखा कि एक मर्तबा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहा था, मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी की एक इमारत ज़ेरे तामीर है, तो मैं ठेकेदार के पास गया, मैंने उससे कहा कि मुझे मजदूरी दो। तो उन्होंने देखा कि एक तालिब इल्म है, तो कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई मजदूरी नहीं, इसलिए कि तुम ताकतवर नहीं, तुम मजदूर नहीं, तुम जफाकश नहीं, तुम मेहनती नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूं, आप मुझे मौका दें, इसलिए कि मुझे जरूरत है। तो ठेकेदार ने कहा कि अभी कोई जगह नहीं, तुम आते रहो, जब कोई जगह बनेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। वो कहते हैं कि एक दिन मैं गया तो उसने मुझे कहा कि मजदूर तो पूरे हैं, हाँ आज मेरा बैल बीमार है, मेरा बैल राहत से पानी खींचता है, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो आ जाओ, बैल की जगह काम करो। तो उसने कहा कि मैंने हामी भर ली कि हाँ मैं करता हूं। तो सारे मजदूर चौंक उठे, उन्होंने कहा कि ये देखो एक तालिब इल्म नौजवान ये कहता है कि मैं बैल की जगह काम कर लूंगा। तो सारे हैरानी से उसे देखने लगे। वो कहते हैं कि मैं बैल की जगह राहत खींचता रहा और घूमता रहा, वो मजदूर देखते रहे और फिर हंसते थे कि अभी 10 मिनट के बाद, फिर कहा 20 मिनट के बाद ये थक जाएगा और बैठ जाएगा, इसकी हिम्मत जवाब दे देगी। लेकिन वो कहते मैं लगा रहा। वो बड़े हैरान हुए, फिर कामों में लग गए। फिर जब जोहर के बाद खाने का वक्फा हुआ, मेरे पास खाना नहीं था, वो बैठे खाना खाना शुरू किया और मैं साथ वैसे ही बैठा रहा। फिर वक्फा खत्म हुआ, फिर मैं राहत पे लग गया। जब शाम हुई तो ठेकेदार ने कहा कि बंदा वाकई काबिल है, तुम रोजाना आया करो, मजदूरी किया करो। वो कहते मैं मजदूरी करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो इमारत मुकम्मल हो गई और इमारत मुकम्मल होने के बाद जब उसका इफ्तिताह हुआ और फीता कटा, तो उस दिन जब इम्तिहान हुआ और मैं प्रोफेसर बनकर वहां पर आया तो वो ठेकेदार हैरान हुआ और उसने कहा कि जवान
तुम इसी काबिल हो कि तुम दुनिया की इमामत करो। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आज की टेक्नोलॉजी ने तालिब इल्म को सुस्त किया है, गाफिल किया है, काहिल किया है, बेपरवाह किया है। आपने लेकिन अपने मिशन को नहीं भूलना, और आपका मिशन बड़ा बुलंद तरीन मिशन है। वो मिशन सिर्फ मेहराब और मिंबर में वाइज बनना नहीं, बल्कि दुनिया की इमामत करना है। इमामत सुगरा नहीं, इमामत कुबरा करना है। इसलिए कि रब की कायनात में सिर्फ मस्जिद का मुसल्ला नहीं, आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने ये पूरी कायनात और जमीन मेरे लिए मस्जिद सजदागाह बनाई है। आपने दुनिया की इमामत करनी है और आगे बढ़ना है, इल्म के जरिए से, अपनी सलाहियत के जरिए से, अपने विजन के जरिए से, अपनी मेहनत के जरिए से, अपनी जुस्तजू के जरिए से, अपने जोश और अपने जज्बे के जरिए से। और मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपने परेशान नहीं होना कि जमात इस्लामी जीतती रही, जमात इस्लामी को सीटें नहीं मिलती। इसलिए कि मेरा और आपका काम यह है कि रब के झंडे को उठाए, उसकी सदा लगाए, उसकी तरफ लोगों को बुलाए। यही अंबिया का काम है। और अगर आज जीत के आसार नहीं तो कोई बात नहीं। 1 साल पहले बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी की क़यादत जेलों के अंदर थी, और किसी को यह पता भी नहीं था कि जाबिर के सामने, आमिर के सामने और जालिम के सामने ये लोग उठेंगे और उसको फना कर देंगे, भागने पर मजबूर कर देंगे। और फिर आज जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप देख लें कि सर्वे ये बता रहे हैं कि आई और जमात इस्लामी आई। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, कभी ये ना सोचे कि हमारी जिंदगी के बाद आपकी जिद्दोजहद रंग लाएगी, बल्कि उम्मीद रखे और ये यकीन रखे कि आपकी जिंदगी के अंदर ये इनकलाब 4 सू फैलने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, आपको बताता चलूं कि अदी बिन हातिम नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर ईमान कबूल किया। उन्होंने पहले सहाबा को देखा, फिर मदीना की इस्लामी रियासत को देखा, और फिर उन्होंने कहा, हुजूर हाथ आगे बढ़ाए, मैं ईमान लाना चाहता हूं। हुजूर पे ईमान ले आए, और फिर उन्होंने अगली जो बात कही वो मेरा और आपका यकीन है, ईमान है। उन्होंने कहा, हुजूर इन्नल्लाह ताला मुज़हिरुका अलल अर्दि कुल्लिहा, अल्लाह के रसूल, मुझे यकीन है कि अल्लाह आपको इस पूरी कायनात की, पूरी जमीन की क़यादत अता करेगा। फहबली करियती फी बैतिल्लहम, अल्लाह के रसूल फलस्तीन से आया हूं, बैतिल्लहम मेरे गांव का नाम है, वहां पर हमारे दुश्मनों ने कब्जा किया है, हमें वहां से निकाला है। मेरा यकीन है कि आपका दीन वहां तक पहुंचेगा, आजादी मिलेगी। आप मुझे लिख कर दे कि मुझे यह लिख कर दे कि जब इस्लामी फौजें वहां पर पहुंचे तो वो जगह, वो बस्ती बैतिल्लहम आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा, मुझे लिख कर दे कि वो मेरे लिए होगा। हुजूर ने लिख कर दिया। फिर हजरत उमर के दौर में फलस्तीन फतह हुआ, फिर ये आ गए और वही वसीका लेकर आए कि देखो अल्लाह के रसूल ने लिख कर दिया था। मेरा उस वक्त भी यकीन था कि इस्लाम यहां पर आएगा, आज आ गया है। मेरे अजीज भाइयों, वो वक्त आने को है, वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन आइए मैं और आप अपने आप को तैयार करें, अपने पैकर खाकी में जान पैदा करें, अपने आप को उस क़यादत के लिए जिसके लिए अभी तैयारी करना बाकी है, उसके लिए तैयार करें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इस कायनात पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा से फरमाया, तवील हदीस है, मफहूम बयान करता हूं कि उन्होंने फरमाया, मेरे सहाबा ये मेरा दौर है, नबूवत का दौर है, ये रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर ये गुजर जाएगा, फिर उसके बाद खिलाफत आएगी, वो रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर वो दौर गुजर जाएगा, फिर मलूकियत बादशाहत आएगी, जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी। और फिर आप जानते हैं कि खुलाफा के बाद
1000 साल तक मुसलमान बादशाह किसी न किसी तरह दुनिया में हाकिम रहे। कभी उमवी थे, कभी अब्बासी थे, कभी उस्मानी थे, कभी मुगलिया सल्तनतें थी। फिर ये दौर गुजर गया। हुजूर ने फरमाया फिर एक दौर आएगा, काट खाने वाला जबर का दौर आएगा। फिर वो दौर आया कि जब खिलाफत उस्मानिया टूट गई, हमारे 28 मुल्कों पर, कहीं पर बरतानिया का कब्जा, कहीं पर इटालियन का कब्जा, कहीं पर फ्रांसीसियों का कब्जा, और हमारे इस बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत टूटी और अंग्रेज काबिज हुआ। और फिर हमारे बड़ों ने इस जबर के खिलाफ जिद्दोजहद की, जिहाद किए, और कुर्बानियों के नतीजे में, करोड़ों कुर्बानियों के नतीजे में आजादी हासिल की। तो हुजूर ने फरमाया फिर जबर का, अमरियत का, काट खाने वाला दौर आएगा। वो दौर आया और गुजर गया। उसका सेकंड फेज अभी चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने जिहाद किया, आज हमें मुल्क मिल गए, आजादियां मिल गई। लेकिन फिर आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दौर गुजर जाएगा जब अल्लाह चाहेगा। फिर उसके बाद खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का दौर आएगा और हर तरफ इस्लाम का झंडा होगा। मेरे अजीज भाइयों, सारे दौर गुजर गए और ये आमरियत का, जबर का सेकंड फेज गुजर रहा है। इसके बाद इंशाअल्लाह खिलाफत अला मिनहाज नबूवत आई चाहती है। आइए मैं और आप अपने आप को तैयार करें और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मेरी और आपकी जिद्दोजहद ये जाया नहीं होगी, बल्कि इसके नतीजे में इस्लामी इनकलाब आया चाहता है। लेकिन मैं और आप ये देखें कि हमने इसके लिए क्या जिद्दोजहद की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूं कि मुझे भी, आपको भी, हर कारकुन को, हर मुसलमान को इस काफिले का शदाई और इसके लिए जिद्दोजहद करने वाला बनाए। जो कुछ कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में जमीयत तलबा अरबिया को इसके नज़म को मुबारकबाद पेश करता हूं। वस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह।